Hello students, welcome to your mathematics class. Today we are going to learn your chapter number 4 which is multiplication. Right? आपने सबने multiplication सीख रखा होगा, correct? पढ़ा है अपनी previous classes में. अभी हम उसको revise करेंगे पहले, then we are going to learn more tricks about multiplication. Okay? आपने अब तक क्या किया होगा? 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, राइट. अभी हम क्या करेंगे? 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट हम रिवाइज करते हैं. विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. 48 मल्टीप्लाइड बाय 20. ओके, to make it simpler you can relate it to the multiplication by 10. What you do if you multiply something by 10, what happens? You just put a 0 in the last, whatever the number it is, right? यही करते हैं आप. 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में बस एक सिंपली एक 0 ऐड हो जाता है, करेक्ट. सिमिलरली हम इसमें कर सकते हैं. अगर मैं इस 20 को डिवाइड करूँ ऐसे दो पार्ट में, लाइक 2 into 10, करेक्ट. सही है ये. 2 10s are 20, राइट. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट. तो अब ये क्या लिखा जा सकता है? ये वाला सम 48 into 2 into 10, राइट. सो 10 का 0 आ जाएगा लास्ट में, सिंपल है. देन विल मल्टीप्लाई. 2 8s are 16, कैरी 1, 2 4s are 8 plus 1 9. Okay, moving on to the next one. This is also the similar. Here 20 की जगह पे क्या है? 30, राइट. अभी हम सिंपली सॉल्व अलग से नहीं करते हैं, यहीं पे लिखते हैं. 0 का 0 ऐसे आ जाएगा बिकॉज इट इज 30. 3 into 10 you will divide it, so 0. Now multiply by 3. 3 5s are 15, carry would be 1. 3 6s are 18 plus 1 would be 19. Okay, moving on to the next one. This is simple. You have to multiply 79 by 10. So it would be 790, right? Now this one. Students, आपने सीखा होगा something multiplied by 1 remains the same number, right? तो यहाँ पे यही हो रहा है. 52 multiplied by 1. So answer would be 52, correct? अब ये ई नंबर जो क्वेश्चन है ये इनके जैसा है, ए और बी जो अभी हमने सॉल्व किया था, राइट. 34 मल्टीप्लाइड बाय 40. सो इफ आई डिवाइड 40 एज 4 into 10, 10 का 0 लास्ट में आ जाएगा, राइट. नाउ यू मल्टीप्लाई 4 into 35, वो 34, राइट. 4 4s are 16, कैरी वुड बी 1, 4 3s are 12 plus 1 would be 13. Okay, moving on to the next one. This is also very important, students. Something multiplied by 0 will become 0, right? So what we have learned? We have learned 3 things in this question. One is if you multiplied something by 10, तो क्या होता है? Simply एक 0 आप लास्ट में ऐड कर देते हो और बाकी वो नंबर ऐसे ही आ जाता है, right? सेकेंड चीज हमने क्या लर्न करी है? इफ यू मल्टीप्लाई समथिंग बाय 1, इट विल रिमेन सेम. ओके, एंड थर्ड वन इज इफ यू मल्टीप्लाई समथिंग बाय 0, it will become 0. Okay, moving on to the next one. Second question in which you can see 2-digit multiplication, right? 69 multiplied by 28. You can do it by writing like that. 69, इसकी के नीचे 28 लिखो, पुट द मल्टीप्लिकेशन मार्क. ओके, नाउ मल्टीप्लाई इट. 8 9s are 72. ओके, कैरी वुड बी 7. 8 6s are 48. 48 plus 7 would be 55. Okay, now put the cross under the first number, the 1 number. Okay, now multiply by the second number. 2 9s are 18. Okay, 2 9s are 18, carry would be 1 this time. 2 6s are 12. 12 plus 1 would be 13. Okay, now we will add these two lines. Okay, it will become 2
5 plus 8 would be 13, carry would be 1, 5 plus 1 6 plus 3 9, और यहाँ पे बिकॉज कुछ नहीं है 0, 0 plus 1 would be 1. So answer is 1932. ओके ये तो बहुत सिंपल है, 9 से मल्टीप्लाई करना है. ओके 9 8 जा 72, कैरी वुड बी 1, 9 4 जा 36, 36 plus 7 42. Oh, I'm sorry, it would be 43. Okay, now multiply by 18. So you can simply multiply by 18 or you can solve it in this way. I'll solve it here, just a minute. Okay, here 20, wait a minute, 205 multiplied by 18. Okay, you can simply count the table of 18 or you can multiply it in using 2-digit method, right? 8 5s are 40, carry would be 4, something multiplied by 0 will become 0, so 0 plus 4 will be 4, right? 8 2s are 16. Okay, we'll put a cross under the 0, the 1 digit. Okay, now multiply by 1, something multiplied by 1 will remain the same, so 1 into 5 5, 1 into 0 0, 1 into 2 2. Okay, now add these two, 0 4 or 5 9 6 3, so answer is 3690. Okay, is it clear? Moving on to the next one. जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लर्न किया था समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 10, तो उसमें क्या होता है, एक 0 लास्ट में लग जाता है. सिमिलरली अगर उसकी जगह पे 100 हो तो क्या होगा, 2 0 लास्ट में लग जाएंगे. व्हाट इट विल बिकम 1100. करेक्ट. ओके, सिमिलर वे ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, 0 0 और इट विल बिकम 3 5, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 3500. ऐसे ये वाला. नाउ ये है 200, तो 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 100. 100 के 0 ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, राइट? 2 को आप 73 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 3s are 6, 2 7s are 14. So answer would be 14,600. Now multiply this one as well. This is 300. So it will, you can write it as 3 into 100 again. 100 के 0 ऐसे ही आ जाएंगे, राइट? अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो. 3 9s are 27, carry would be 2, 3 2s are 6 or and 2 would be 8. So answer is 8700. Now simply this you can solve it. 00 100 का आ जाएगा. 3 into 6, 6 3s are 18. So it would be 1800. Okay, this is similar to this one we have solved 50. So 5 into 10 you can write it as 10 का 0 यहाँ आ जाएगा. 5 से आप मल्टीप्लाई कर लो अब, ठीक है, सिंपल है. 7 5 कर लेते हैं. 7 5s are 35, carry would be 3, 5 1s are 5 plus 3 would be 8. So answer is 850. Okay, clear? Okay, so the next question is, जो आपने देखा होगा लैंग्वेज वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, राइट स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं सॉल्व करने का कि इसको कैसे करा जाता है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को, जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा कभी कभी टफ लगते हैं, बट इट इज इजी. ओके, सलोनी हैज 9 फ्रेंड्स. ओके, यू राइट इट समवेयर. सपोज आई एम राइटिंग इट हियर. शी हैज 9 फ्रेंड्स. ओके, शी गेव अ गिफ्ट ऑफ 600 टू ईच फ्रेंड. यानी कि उसने हर एक फ्रेंड को 600 रुपीज का गिफ्ट दिया है. यानी आप क्या करोगे, अगर फिर आपको निकालना है कि उसने 9 फ्रेंड्स को कितना गिफ्ट दिया, वो आप कैसे निकालोगे? अगर उसने एक को 600 रुपीज का गिफ्ट दिया है तो 9 को कितना दिया होगा? व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई, राइट? सो आंसर वुड बी, ये 2 0 तो ऐसे ही हो जाएंगे, अभी हमने सीखा ना यहाँ पे, राइट? 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे एंड 6 9 जा 54.
Okay, now continue to the next one. We'll learn 4-digit multiplication here. Okay, so here you can see 5487 multiplied by 8, right? 4-digit multiplication. Here it is 4-digit number. Now how you can multiply? You can follow certain steps. If we'll go with this example, यहाँ पे अगर हम देखें एग्जाम्पल में कैसे दिया है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. स्टेप 1 इज मल्टीप्लाई 7 by 8. वही जैसे हमने किया था, आप पूरा इसको लिख लो. ओके, 5487 मल्टीप्लाइड बाय 8, यही करना है हमको. अब सिंपली आपको एक एक करके मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है, आप हमेशा मल्टीप्लाई राइट टू लेफ्ट करते हैं, फ्रॉम वंस टू टेंस और 100,000 ऐसे करते हैं. ओके, so you will first multiply 8 into 7, then 8 into 8, then 8 into 4, then 8 into 5. Okay, simple है, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं. So 8 7s it would be 56. So 6 will write here, but 5 का क्या होगा? 5 जाएगा कैरी. Correct? 8 8 64. 64 plus 5 will be 69. सो कैरी किया जाएगा. अगर 9 मैंने यहाँ लिख दिया है 6, राइट. नाउ 8 4 32. 32 प्लस 6 विल बी 38. कैरी वुड बी 3. कैरी कैसे लेते हैं हम? जो भी आपका नंबर है, जैसे यहाँ 38 था, वंस तो हम यही लिख लेते हैं, लेकिन जो टेंस पोजीशन पे होता है वो हमारा कैरी में चला जाता है. ओके, देन 8 5 40. 40 plus 3, 43. Simple. You can solve it, right? So here, as you can see in this example, the answer is, just a minute, where is the answer? Oh my god. Oh, I think it is on the next page. Just a minute. ओके, यस. सो आंसर इज 43896, जो कि हमने सॉल्व करा था. 43896. ओके. Okay students, moving on to the second example. Here we are going to learn multiplication by 2 digits. Okay, so you can see the example number 2. Here a 4-digit number is multiplied by 2-digit number, right? So we'll write it down like 2748 multiplied by 34. Okay, we'll multiply it. 4 8 32. Carry would be 3, right? 4 4 16 plus 3 would be 19. Carry would be 1. 4 7s 28 plus 1 would be 29. Here carry would be 2. Okay, 4 2s 8 plus 2 would be 10. Again we have multiplied through the first digit, which is at ones place. Now we'll multiply through the second digit, which is at tens place. Okay, and before multiplying by the tens digit, what we have to do? We have to put a 0 or a cross here. According to your book is following a 0 rule, so I am writing down 0, or you can put down the cross. Okay, multiply by 3 now. 3 8 24. So we'll write 4 here and 2 would be carry. Okay, 3 4s 12. 12 plus 2 would be 14. Carry would be 1. 3 7s 21 plus 1 would be 22. Carry would be 2. 3 2s 6 plus 2 would be 8. Okay, so now what we have to do? We have to add these two numbers, right? So 2 plus 0 is 0. As you if you add 0 in something, it will remain same, correct? Okay, so it will remain 2. 9 plus 4 is 13.
we'll write 3 here and 1 would be carry. 9 4 1 again 13 plus 1 14. So 4 will come here and 1 would be carry. Okay, again 0 plus 2 is 2 and 1 is carry, so plus 1 is 3. Here you will write 3. Okay, 8 plus 1 is 9. So answer is 93,432. Easy है? Okay, moving on to the next exercise. Our next exercise is 4.2. Okay, these are the similar sums. We'll do one of them. Okay, let's do the C1. Okay, here 3819 यानी 3819 is multiplied by 25. Okay, you can simply multiply by table also. Like in this example you can see it is 14, so it is easier to multiply single-handedly. You know the table of 14. Mostly क्या होता है, हमें याद होता है ना टेबल, राइट, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर्स को तोड़ के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक 2 डिजिट फॉर्म में कर रहे हैं. ओके, आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल. 5 9s are 45. So 5 will come here and 4 will go as a carry. Okay, 5 1s are 5 plus 4 would be 9. Okay, and 5 8s are 40. 40 का 0 यहाँ आ जाएगा and 4 will go as a carry. 5 3s are 15 plus 3 would be 18. Okay, now we have multiplied through the 5 which is at 1's position. Now we have to multiply it by the second digit which is at 10's position. Okay, before multiplying through the second digit or the 10th place digit, you have to write down the 0 here. Always remember this rule. Okay, now multiply by it. 2 9s are 18, carry would be 1. 2 1s are 2 plus 1 would be 3. 2 8s are 16, carry would be 1. 2 3s are 6 plus 1 would be 7. ठीक है, इसलिए अब क्या करना है, हमें इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है. जो भी हमारे मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर्स आए हैं उनको हमें ऐड करना है. ओके, 5 plus 0 is 5. 9 plus 8 is 17. Carry would be 1. 0 plus 3 is 3, right? And plus 1 is 4. Okay. 8 plus 6 is 14. Carry would be 1. 7 plus 1 is 8. Plus 1 is 9. Okay. Easy है. Moving on to the next one. क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, आई एम नॉट सॉल्विंग दीज टू, वो इजीली हो जाएंगे. ठीक है, इनमें से ट्राई करते हैं. फ्रॉम द सेकेंड क्वेश्चन विल डू मे बी दिस वन, विल डू द बी पार्ट. ओके, आई एम राइटिंग इट हियर. 6497 मल्टीप्लाइड बाय 15. ओके, वन वे इज यू कैन मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टली 15 क्योंकि क्या 15 का टेबल आपको लर्न होगा, राइट. बट here what we are doing, we are using the 2-digit method. Okay, so we will multiply by 15 like one by one. We'll multiply by 5 first, then by 1. Okay, so 5 7s are 35. So you'll write 5 here and 3 as a carry. Okay, 5 9s are 45. 45 and 3, 45 plus 3 would be 48. Carry किया जाएगा 4. Okay, 5 4s are 20. 20 plus 4 24. Again carry किया जाएगा यहाँ पे 2. 5 6 are 30. 30 plus 2 would be 32. हो गया, फर्स्ट डिजिट से हमने मल्टीप्लाई कर लिया. नाउ इट्स द टर्न ऑफ द आवर सेकेंड डिजिट जो कि है 10th पोजीशन पे. ऑब्वियसली हमने क्या रूल फॉलो करना है, 10th पोजीशन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे एक 0 लगाना है. ओके, नाउ व्हाट डिजिट इज दिस 1. सो 1 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो सेम रहता है, इट विल रिमेन
same. So it will 1 multiplied by 7 7, 1 multiplied by 9 9, 1 multiplied by 4 4, 1 multiplied by 6 6. Okay, now what you have to do, you have to add these numbers. 5 plus 0 5, 8 plus 7 15, carry would be 1, 9 plus 4 plus 1 would be 14, carry would be 1 again, 4 plus 2 6 plus 1 is 7, 6 plus 3 is 9. So your answer of the B question is 97,455. Okay, easy hai. Moving on to the next one. As you can see in the next one, अभी तक हमने क्या किया, 1 digit multiplication किया, 2 digit multiplication किया, correct. Now it is 3 digit multiplication. क्या करना है, 3 digit multiplication करना है. As you can see ये भी 3 digits है, ये भी 3 digits है, correct. अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करना है. ओके, यू विल राइट इट डाउन एज 287 मल्टीप्लाइड बाई 265. ओके, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं. किधर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रूल होता है, यू विल मल्टीप्लाई फ्रॉम वंस पोजिशन टू द अदर्स, लाइक वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. ओके, सो वंस पोजिशन पे यहाँ पे क्या है, 5 5 7 जा 35. So 5, carry would be 3, 5 8 are 40, 40 plus 3 would be 43, carry would be 4, 5 2 are 10 plus 4 will be 14. So it will become 1435. Okay, 5 से multiply हो गया, done. Now 6 से multiply करना है. अब 6 है 10th पोजीशन पे, तो क्या रूल होता है 10th पोजीशन के लिए कि आपको यहाँ पे एक 0 लिखना होता है. ओके, और मैंने जो एक्सरसाइज नंबर 1 में बताया था, यू कैन ऑल्सो पुट द क्रॉस, बट आपकी बुक 0 रूल फॉलो करिए, सो वील राइट 0. ओके, नाउ वील मल्टीप्लाई बाय 6. 6 7 जा 42, 2 will come here, 4 will go as a carry, 6 8 जा 48, 48 plus 4 is 52, 2 we will write here, 5 will go as a carry, 6 2 ja 12, 12 plus 5 will be 17. So here the number is 17,220. Okay, now अब हमने यहाँ तक तो सिंपल था, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन करा वैसे ही था. 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन हमारा हो गया. नाउ द थर्ड डिजिट, ये है 100th पोजीशन पे. आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा अपनी पहले क्लासेस में, तो आपको पता होगा दिस इज द 100th पोजीशन, राइट. तो 100th पोजीशन अगर है तो इसमें क्या रूल फॉलो होगा कि यहाँ पे हम पहले 2 zeros लिख लेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो आफ्टर राइटिंग 2 zeros you will multiply. 2 7s are 14, carry would be 1, 2 8s are 16 plus 1 would be 17, carry again would be 1, 2 2s are 4 plus 1 is 5. Okay, you will get this number, which is actually 57,400. Now what you have to do, अब तक हम क्या करते थे, जो 2 हमारे नंबर आते थे उनको ऐड करते थे, बट 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 3 नंबर आ रहे हैं, तो इस बार हमें क्या करना है, तीनों नंबर को ऐड करना है, तीनों को ऐड करना है. सो 5 plus 0 विल बी 5, 3 plus 2 plus 0 will be 5, बिकॉज क्या होता है, 0 चाहे 1 ऐड कर लो, 2 ऐड कर लो, थाउजेंड्स ऐड कर लो, 0 ऐड करने पे नंबर विल रिमेन सेम. ओके, सो 3 plus 2 is 5 plus 0 is again 5, 4 plus 2 is 6, 6 plus 4 is 10, 10 का 0 यहाँ पे लिख देंगे, कैरी would be 1, 7 plus 7 is 14, 14 plus 1 is 15 and 1 कैरी है हमारे पास, तो ये हो गया 16. अगेन यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा. यहाँ क्या है, 5 plus 1 is 6 plus 1 is 17. So 7, I'm sorry, 7. So answer is 76,055. Got it? Easy है. Okay, moving on to the exercise. जो एग्जाम्पल हमने किया है इसी की सेम एक्सरसाइज करते हैं अभी हम. ओके, अभी तक हमने क्या सीखा था, पहले 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, अभी है हमारा 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन. अब इसमें से हम कुछ उठाते हैं, बिकॉज सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इज इम्पॉसिबल. कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, लाइक आई विल टेक दिस वन.
B1. Okay, I'm writing it here. 648 multiplied by 109. Correct? We'll multiply it. Okay, 9 8 ja 50. Oh sorry, I'm so sorry. 9 8 ja 72. Carry would be 7. Okay, 9 4s are 36. 36 plus 7 will be 43. So carry would be 4. Okay, 9 6 ja 54. 54 plus 4 will be 58. ओके, दिस वन वाज इजी, हमने वंस पोजीशन वाले से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमारा सेकंड पोजीशन है, टेंस पोजीशन पे जो है वो है 0. बट बिफोर मल्टीप्लाइंग बाय द सेकंड डिजिट और द टेंस पोजीशन डिजिट, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉलो अ रूल एंड राइट अ 0 हियर. करेक्ट, एक 0 हमें लिखना होता है. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये 0 है और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 0 ही आता है. सो वील राइट 0 हियर. ओके, अब है थर्ड पोजीशन पे जो कि 100th पोजीशन पे है, उससे मल्टीप्लाई करना है हमें. सो उसके लिए हमने यहाँ क्या रूल सीखा था कि हमें 2 zeros लगाने होते हैं. सो वील राइट 2 zeros हियर फर्स्ट, देन वील मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे 1 है, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 रिमेन्स द सेम नंबर. ओके, सो इट विल become 1 into 8 is 8, 1 into 4 is 4, 1 into 6 is 6. Now what you have to do, you have to add all three of them. Okay, 2 plus 0 is 2. क्या सीखा था हमने, that क्या चाहे आप 1 0 ऐड करो, 2 zeros ऐड करो, 1000 0 ऐड करो, नंबर सेम रहेगा. Okay, so 2, 3 plus 0 is 3, 8 plus 0 is 8, again plus 8 is 16, carry would be 1, 5 plus 1 is 6, 6 plus 0 is 6, 6 plus 4 is 10, carry will be 1. So 6 plus 1 is 7. So our answer for this question is 70,632. Easy है, हो गया. अब भी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं. विल टेक द एग्जाम्पल नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि इसमें सिमिलर नंबर्स आ रहे हैं, मे बी आप कंफ्यूज हो तो हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं. आई विल सॉल्व इट हियर. इट इज 802 मल्टीप्लाइड बाय 119, राइट? ओके, सो 9 2s are 18, carry would be 1, 9 into 0 will be 0. ओके, बट हमारे पास 1 कैरी है, तो 0 plus 1 is 1. 9 8s are 72. ओके, अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, रूल फॉलो करना है. और क्या लिखना है यहाँ पे, जब 10th से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10th पोजीशन वाले से, तो क्या लिखना है, 0. नाउ समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 रिमेन्स सेम, तो क्या हो जाएगा, 1 into 2 2, 1 into 0 0, 1 into 8 8. अब आते हैं 100th पोजीशन पे. 100th पोजीशन पे आए हैं तो फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें 2 zeros लगाने पड़ेंगे. देन अगेन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट विल रिमेन सेम, 2 0 8. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड ऑल 3 ऑफ देम. ओके, 8 plus 0 is 8. सिंपल है. 1 plus 2 is 3, 3 plus 0 is 3 again. 2 plus 0 is 2, 2 plus 2 is 4. Okay, 7 plus 8 is 15, 15 plus 0 will remain 15, so we'll write 5 here and 1 will go as a carry. So 8 plus 1 is 9. Okay, so answer for D question is 95,438. Okay, is it clear? Moving on to the next question. Okay, I hope you can do the exercise. Okay, now we are moving on to the third type of question which we have seen in our first exercise, right? The language question. अब इनमें problems आती है because हमें उसे समझना होता है, correct? बट हम उसे साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है. ओके, संजय अर्न्स 7,985 पर मंथ. ओके, संजय की अर्निंग कितनी है,
7,985. ओके, हाउ मच डज ही अर्न इन अ ईयर? 1 मंथ की अर्निंग कितनी है? 7,985. तो 12 मंथ की कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 12. सिंपल है, 1 मंथ की इतनी है तो 12 मंथ की कितनी होगी, क्योंकि इसने पूछा है इन अ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ, करेक्ट. सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 12. You can simply multiply by 12 by doing the table, or you can use the two-digit multiplication method. Okay, I am using the two-digit multiplication method here. 2 5s are 10, carry would be 1. 2 8s are 16, 1 17, carry would be 1 again. 2 9s are 18, plus 1 would be 19, carry is 1. 2 7s are 14, plus 1 is 15. अगेन जब हम टेंस पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक जीरो ऑलरेडी लगा देंगे, ठीक है. नाउ 1 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर विल रिमेन सेम. 1 into 5 5, 1 into 8 8, 1 into 9 9, 1 into 7 7. Okay, now we will add them. 0 is 0 0, 5 7 12, carry would be 1. 9 8 plus 1 will be 18, carry would be 1. Again this would be 15, carry would be 1. 7 plus 1 plus 1 is 9. So our answer is 95,820, which you can see here. Easy था, यहाँ पे भी ये solve हो रखा है, you can see that. Okay, moving on to the next question. ये भी language question है. 1 second, I'll erase this क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है. Okay. So we'll read this. If there are 552 pages in a novel, how many pages are there in 173 copies of the novel? अब बात क्या है, नॉवल क्या है, एक बुक है, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ बुक. सो एक नॉवल में कितने पेजेस हैं? 552. ये हमने लिख लिया है यहाँ पे. अब कितनी कॉपीज उस नॉवल की बन रही हैं? 173. So we'll write 173. Now what you have to do? You have to multiply, because एक नॉवल में कितने पेज हैं? 552. तो 173 का कैसे निकालेंगे? उसको मल्टीप्लाई करके. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. ऐसे हमने सम पहले भी किए हैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के, राइट. इजी है, कर लेते हैं फटाफट से. पहले 1 पोजीशन से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी वुड बी 1. 3 5 जा 15 प्लस 1 इज 16. ओके, नाउ 10 पोजीशन से मल्टीप्लाई करने से पहले क्या लगा देंगे? एक 0. 7 2 जा 14, कैरी वुड बी 1. 7 5 जा 35 प्लस 1 इज 36, कैरी वुड बी 3. ओके, 7 5 जा 35 प्लस 3 इज 38. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज 100th पोजीशन. अब 100th पोजीशन पे 2 जीरोज लग जाते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले, करेक्ट. अब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम होगा. 1 into 2 is 2, 1 into 5 is 5, 1 into 5 is 5. ओके, आ गया. अब इन सबको ऐड करना है. तो 6 plus 0 is 6, 5 plus 4 is 9, plus 0 is 9. 6 plus 6 is 12, plus 2 is 14. Here carry would be 1. Okay, 1 plus 1 is 2, 2 plus 8 is 10, 10 plus 5 is 15. Again carry would be 1. 5 plus 3 is 8, plus 1 is 9. So here is your answer. तो कितने पेजेस हुए? अगर एक नॉवल में 552 पेजेस थे तो 173 कॉपीज में कितने पेजेस हुए हमारे? 95,496. सो हाउ यू विल राइट द आंसर? सो देयर आर 95,496 पेजेस इन 173 कॉपीज ऑफ ए नॉवल. चलो इसकी एक्सरसाइज करते हैं. ये अभी तक हमने एग्जाम्पल्स देखे थे. ओके, अब देखो इसमें से हम फर्स्ट वन ही सॉल्व करते हैं, राइट. द स्कूल फी ऑफ अ क्लास 4 स्टूडेंट इज 4,285 पर स्टूडेंट. व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय 23 स्टूडेंट. अब देखो एक स्टूडेंट की फी कितनी है? 4,285. सो हमें कितने स्टूडेंट्स की निकालनी है? 23 स्टूडेंट्स की. व्हाट यू विल डू? यू विल सिंपली मल्टीप्लाई. हाउ यू विल मल्टीप्लाई? जैसे हमने कर रहे थे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, सेम वही मेथड यूज करेंगे. 4285 मल्टीप्लाइड बाय 23. क्योंकि क्यों मल्टीप्लाई किया? कि हमने एक स्टूडेंट की इतनी आ रही है तो 23 स्टूडेंट की कितनी आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना.
या फिर क्या कर सकते हैं हम 23 टाइम ऐड, विच इज़ नॉट फिजिबल, आप कर ही नहीं सकते 23 टाइम उसको ऐड, तो हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई। अब सिंपल है, 3 5s are 15, कैरी वुड बी 1, 3 8s are 24, कैरी प्लस 1 कैरी है तो ये हो जाएगा 25, अगेन कैरी वुड बी 2, 3 2 6 प्लस 2 is 8, 3 4s are 12, ओके। अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पोजीशन पे क्या लिख देंगे हम, एक 0, 2 5s are 10, कैरी वुड बी 1, 2 8s are 16 प्लस 1 is 17, कैरी वुड बी 1, 2 2s are 4 प्लस 1 is 5, 2 4s are 8. Now what you have to do, you have to add these. 5 plus 0 is 5, 5 plus 0 is 5, 8 plus 7 is 15, carry would be 1, 5 plus 2 is 7 plus 1 is 8, 8 plus 1 is 9. So इसका आंसर आपका क्या होगा, the amount paid by 23 students is 98,555 rupees. ओके अभी हमने ये वाला कर लिया, चलो कोई और सा भी करते हैं, सेकेंड वन ही करते हैं, ठीक है। 2026 यानी 2060 people visited a zoo on a Friday. Okay, each person bought a ticket of 40 rupees. How much is the amount collected on this day? अब एक पर्सन का टिकट 40 रुपीज़ का है एंड कितने पर्सन वहाँ गए 2060. सो हम क्या करेंगे, सिंपल है, अगेन विल मल्टीप्लाई 2060 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से। और ये तो बहुत इजी है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि 40 है तो ये किसका मल्टीपल है, 10 का, इसको डिवाइड कर लो 4 into 10 में। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2060 मल्टीप्लाइड बाय 4 into 10, करेक्ट, दिस इज 10, ओके, 4 into 10। अब 10 का तो सिंपली एक 0 लग जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 4 into 0 will be 0 because something multiplied by 0 remains 0, 4 6 24, we'll write 4 here, 2 will go as a carry 2, again 4 into 0 will be 0 because 2 carry था तो वो यहाँ आ जाएगा, 4 2s are 8, so our answer is 82,400. easy है students. Okay, moving on to one more example, we'll take one more example. Okay, let's take fourth one. If 2875 trees are planted every day, एक दिन में 2875 ट्रीज लगाए जा रहे हैं, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन ए मंथ। अब एक मंथ में कितने दिन होते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन, लाइक 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, 28 29 भी होता है फैब में तो, राइट। बट ऑन एवरेज अगर हमारे 30 डेज से इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें, 30 डेज पे निकालें तो 2875 मल्टीप्लाइड बाय 30 हमारे आ जाएंगे एक मंथ में जितने प्लांट हमने लगाए होंगे, करेक्ट, क्योंकि एक दिन में हम कितने ट्रीज लगा रहे हैं, 2875 30 डेज में कितने लगाएंगे उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 30 से मल्टीप्लाई करना सिंपल, जैसे हमने ये वाला मेथड यूज किया था, बिकॉज 30 इज मल्टीपल ऑफ 10। अगेन हम इसको 10 का 0 लिख लेंगे पहले, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5s are 15, कैरी वुड बी 1, 3 7s are 21 प्लस 1 कैरी था तो ये हो जाएगा 22, अगेन 2 कैरी जाएगा, 3 8s are 24 प्लस 2 is 26, अगेन 2 कैरी जाएगा, 3 2 6 प्लस 2 is 8. So our answer is 86,250 trees will be planted in a month. Easy है, ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई है 4.4, एस्टिमेट अ प्रोडक्ट, एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट्स को एस्टिमेट कैसे करते हैं, एस्टिमेटिंग अ प्रोडक्ट इज अ वे टू गेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। जनरली क्या होता है, अगर आपको किसी चीज़ का एस्टिमेट निकालना है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के। अब वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए आपको ईजीएस्ट वे में लेके जाना पड़ता है, लाइक उसमें उसको टेंस या हंड्रेड्स के फैक्टर्स में लेके जाना होता है, जैसे कि इसमें लिखा भी है, उसको टेंस या हंड्रेड्स और नियरेस्ट मल्टीप्लाइंग जो भी उसकी राउंड ऑफ वैल्यू होगी उसमें ले जाना होता है। ओके, इजी है। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम यही सीखेंगे। उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एस्टिमेट करने के लिए, राइट। अभी हमने सीखा ना एस्टिमेट क्या होता है, बट उसके एग्जाम्पल्स नहीं देखे, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं।
Here example number 6 is estimate the product of 365 and 211 to the nearest 100. अब उसने ऑलरेडी बोल दिया है टू द नियरेस्ट 100 आपको इसको एस्टिमेट करना है. सो हाउ यू विल एस्टिमेट? 365 का अप्रोक्सीमेट आप क्या कर सकते हो? 400 एंड 211 का क्या कर सकते हो? 200. एंड हाउ यू विल डू दिस? नाउ दिस इज द क्वेश्चन, हाउ यू विल एस्टिमेट द you can say the number, how you will approximate it. क्या करते हैं हम? नियरेस्ट देखते हैं. अगर कोई चीज़ जैसे मान लो ये 350 से अबव था, 350 से बड़ा था, 365 जो है हमारा एक सेकेंड, ये 365 हमारा 350 से बड़ा है तो हम उसको 400 में अप्रॉक्स कर देंगे. वहीं ये हमारा जो सेकेंड वाला है नंबर, ये 250 से, एक सेकेंड, ये जो है 250 से छोटा है हमारा 211, तो इसको हम किस में अप्रॉक्स करेंगे? 200 में. इट्स अ कॉमन थिंग, क्योंकि हम क्या लेते हैं, हाफ हाफ में एक तरीके से मान लो डिवाइड कर लेते हैं. अगर हाफ में, यानी हाफ क्या हो गया? 50 हो गया 100 का हाफ. अगर 50 से नीचे है तो उसको नीचे वाले नंबर में अप्रॉक्सीमेट कर लो, और 50 से ऊपर है तो उसको ऊपर वाले नंबर में अप्रॉक्सीमेट कर लो. ईजी है. ओके, सो 365 को हमने 400 में अप्रॉक्सीमेट कर लिया, 211 को हमने 200 में अप्रॉक्सीमेट कर लिया. अब इजी है मल्टीप्लाई करना. 400 इंटू 200, 400 इंटू 200 क्या हो जाएगा? अगेन 100 वाला रूल अगर हम लगाएं, 2 0 इसके, 2 0 इसके, तो यहाँ 4 zeros लग जाएंगे. एंड 4 इंटू 2 विल बी 8, सो इट विल बिकम 80,000. इजी है. सो द प्रोडक्ट इज 80,000 अप्रॉक्सीमेटली. हमें उसका अप्रॉक्सीमेट प्रोडक्ट निकालना था तो वो हमने निकाल लिया. सिमिलर वे में आप एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं. एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 731 एंड 139 टू द नियरेस्ट वैल्यू. अगेन मैंने क्या बताया था, अगर 50 से कम है तो उसको हम कम वाले में अप्रॉक्सीमेट करते हैं, और ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में. इसमें दोनों ही केस में ये 50 से कम है तो 731 को हम 700 कर देंगे, 139 को हम 100 कर देंगे. अगेन 700 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 0 इसके, 2 0 इसके, 7 इंटू 1 विल बी 7, तो क्या आ गया? 70,000. सो द प्रोडक्ट इज 70,000 अप्रॉक्सीमेटली. ओके, मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज जो आपकी सेम है. ओके, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100. अब नियरेस्ट 100 बताया था ना मैंने, कैसे देखते हैं? 50 से कम या ज़्यादा को लेके. ओके, हम यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट वाला 168 एंड 230. अब 168 जो है वो 150 से ज़्यादा है, सो इट विल बी 200. एंड ये जो है हमारा, ये 250 से कम है तो हम इसको क्या कर देंगे? इसको भी 200 कर देंगे. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 200 इंटू 200 विल बी 4 zeros ये लग जाएंगे, 2 zeros इसके, 2 zeros इसके, एंड 2 2s are 4. सो आंसर इज 40,000. इन द सिमिलर वे यू कैन डू दिस. ये क्या हो जाएगा? 300, और ये क्या हो जाएगा? 200. सो आंसर इज 2 zeros इसके, 2 zeros इसके, एंड 3 2s are 6. तो आंसर इज 60,000. इन सिमिलर वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन एज वेल. ओके, अब हम इसमें से एक कर लेते हैं कि ये क्या है. ओके, second question, estimate the total number of books by rounding off to the nearest 10 if there are 143 rows of 109 book. अब आपको इसको estimate करना है. how you will estimate? अभी क्या बताया था? nearest 10 में बोल रहे हैं वो. अभी तक हम क्या कर रहे थे? जैसे nearest 100 में कर रहे थे, करेक्ट. अब nearest 10 में इसको estimate करना है. so how you will multiply it? You will simply do the same जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में करा है. आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, उसको राउंड ऑफ कर दोगे कितने में, क्योंकि हमें इसे नियरेस्ट 10 में करना है. कितने में करना है? नियरेस्ट 10. अभी तक नियरेस्ट 100 में था. नियरेस्ट 10 का मतलब हो गया सिर्फ 10 पोजीशन को हमें छेड़ना है, 100 पोजीशन पे नहीं जाना. सो जैसे कि हमारा यहाँ पे 143 है, करेक्ट. क्या है हमारा यहाँ पे? 143. सो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा? अगर ये जैसे कि 5 हुआ ना, हाफ 10 का हाफ क्या हुआ? 5. सो यहाँ ये 5 से कम है तो इसको हम क्या कर देंगे? अप्रॉक्सीमेट करके 140. अब ऐसे ही इसमें देखेंगे 10th पोजीशन पे अगर हम देखें 9 है, 09. अब 09 ऑब्वियसली 5 से ज़्यादा है तो इसको अप्रॉक्सीमेट करके हम कितना कर सकते हैं? इसको अप्रॉक्सीमेट करके हम कितना कर सकते हैं? 110.
राइट। अब हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया, अब हमें सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। सो 140 मल्टीप्लाइड बाय 110, सिंपल है। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, 2 जीरोस तो हमारे ऐसे ही लग जाएंगे। 11 से अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। या तो आप 11 का टेबल पढ़ सकते हो, या आप सिंपली ये कर सकते हो 14 मल्टीप्लाइड बाय 11, या फिर आप 140 मल्टीप्लाइड बाय यही कर लो, ठीक है। जीरो से मल्टीप्लाइड तो सब जीरो ही हो जाना है, 3 डिजिट वाला हम देख रहे हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पे जीरो आएगा क्योंकि हम 10th पोजीशन से कर रहे हैं। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0, 4, 1, ओके ओके। एंड अब 100 पोजीशन से कर रहे हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, अगेन 0, 4, 1, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, अगेन 0, 4, 0 इज 4, 0, 1, 4 is 5, and this. So answer is 15400. Easy है. You can do other remaining 2 questions in the similar way. Okay. Moving on to the some questions जो आपके MCQ questions दिए हैं इसमें. We'll try to solve this. Okay. Darken the correct option in the OMR sheet. Okay, OMR sheet नहीं है, हम answers देखते हैं. Multiply करना है अब आपको इसको इससे. How you will multiply? जैसे कि हमने सेकेंड एक्सरसाइज में किया था आपकी 4.2 में 639 मल्टीप्लाइड बाय 57. इट इज सिंपल 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं करना है, सिंपल 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है. हाउ यू विल मल्टीप्लाई? 7 9 जा 63. सो यू विल राइट 3 हियर, you will write just a minute, you will write 3 here and carry would be 6. Okay, 7 3s are 21, 21 plus 6 is 27, carry would be 7. Okay, now 7 6 are 42, 42 plus 2 is 44. Okay, now मैंने यहाँ पे क्रॉस पुट किया है, क्या पुट करना है आपको? 0. ओके, बिकॉज आपके बुक के रूल्स के अकॉर्डिंग 0 पुट करना है. और 0 क्यों पुट करना है? बिकॉज हम 10th पोजीशन वाले से मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस बार. सो 5 9s are 45, कैरी वुड बी 4, 5 3s are 15 plus 4 is 19, कैरी इज 1, 5 6 are 30, 30 plus 1 is 31. Okay, now what you have to do? You have to add these two. 3 plus 0 is 3, 7 plus 5 is 12, carry 1, 9 plus 4 plus 1 is 14, carry would be 1, 4 plus 1 is 5 plus 1 is 6 and 3. 3 6 4 3 2, 4 2 3. So answer will be option number B. Okay, now second question is how many minutes are there in 8 days. अब ये सॉल्व करो, इसको कैसे करना है देखो. हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 8 डेज. ये हम कैसे निकालेंगे? एक दिन में पहले हम देखते हैं इन 1 डे हाउ मैनी आवर्स आर देयर. कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. ओके, तो 8 डेज में कितने हुए? 8 से मल्टीप्लाई कर लो. 8 4 32, कैरी वुड बी 3, 8 2 16 प्लस 3 इज 192 आर. इतने तो हमारे आर हो गए कितने? 8 डेज में. लेकिन हमें आवर्स नहीं निकालने हैं, हमें मिनट्स निकालनी है. अब 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट. सो 192 मल्टीप्लाइड बाय 60. सिंपल है. अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? 0. ओके, अब हम 10th पोजीशन वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 लिखेंगे एंड 6 2 12, कैरी वुड बी 1. करेक्ट, गेटिंग इट. 6 9 54 प्लस 1 इज 55, कैरी वुड बी 5. 6 1 6, 6 प्लस 5 is 11. Okay, now we'll add these 0 2 5 11. So our answer is 11,520, which is option number A. Easy है. Third one is each year 2,645 children pass out from a school. How many children pass out from a school in 15 years? Assume that all children pass out. Okay, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक साल में in 1 year एक स्कूल में से कितने स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं?
2645. सो 15 ईयर्स में कितने होंगे? सिंपल है, जब एक साल में 2645 पास आउट हो रहे हैं तो 15 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट. 5 5s are 25, carry would be 2, 5 4s are 20, plus 2 is 22, carry would be 2, 5 6s are 30, plus 2 is 32, carry would be 3 again, 5 2s are 10, plus 3 is 13. Now we'll put a 0 here because हम 10th position से multiply करने वाले हैं, correct. So 1 से multiply करते हैं तो same रहता है, it will remain same. 1 5s are 5, 1 into 4 is 4, 1 into 6 is 6, 1 into 2 is 2. Now you will add these two. 5 plus 0 is 5, 5 plus 2 is 7, 4 plus 2 is 6, 6 plus 3 is 9, 1 plus 2 is 3. So our answer is 39,675, which is option number D. Okay, get it? Easy है, there is nothing much कि आपको इसमें घबराने वाली बात है, बहुत easy है. Okay, 2 more questions are remaining, then we are done with your multiplication chapter. Okay, a mobile shop sold 765 mobile phones in a week. How many will be sold in 43 weeks? अब एक वीक में कितने बेच रहा है वो मोबाइल फ़ोन? 765. तो 43 वीक्स में कितने बेचेगा? उसको 43 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल है. 3 5s are 15, कैरी इज 1. 3 6s are 18, plus 1 is 19, carry is 1. 3 7s are 21, plus 1 is 22. Now you will put a 0 here because आप 10th position वाले से मल्टीप्लाई करने वाले हो. ओके, 4 5s are 20, carry would be 2. 4 6s are 24, plus 2 is 26. Again carry is 2. 4 7s are 28. 28 plus 2 is 30. So you write 30 here, correct. Now what you have to do? You have to add these two numbers. 5 plus 0 is 5, 9 plus 0 is 9, 6 plus 2 is 8, 2 plus 0 is 2 and 3. So answer is 895. Okay, correct. Now the next question is, and the last question of our multiplication chapter is, a bag contains 65 kg of wheat. How much would 230 such bags weight? ओके, अब इसमें क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि एक बैग जो है वीट्स का यानी कि गेहूं का, वो कितने किलो का है? 65 केजी का है. ओके, तो 230 अगर हमारे पास ऐसे बैग हो तो कितने केजी हो जाएगा हमारे पास ओवरऑल? तो कैसे करेंगे? 230 मल्टीप्लाइड बाय 65. सिंपल है, क्योंकि एक का वेट 65 है तो 230 का कितना होगा उसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे. ओके, आई विल मल्टीप्लाई इट देयर बिकॉज यहाँ जगह नहीं है. ओके, सो इट इज 230 multiplied by 65. Okay, so 5 into 0 is 0. 5 3s are 15, carry is 1. 5 2s are 10, plus 1 is 11. Now you will put a 0 here before multiplying by the 10th digit. Okay, 6 into 0 is 0. 6 3s are 18, carry is 1. 6 2s are 12, plus 1 is 13. Now what will you do? You will add 0 plus 0 is 0, 5 plus 0 is 5, 1 plus 8 is 9, 1 plus 3 is 4, plus 1. So it would be 14,950. Okay student, so I hope you get the multiplication of like 3 digit, 4 digit, also the questions of language, you get the questions. Okay, see you in the next class. Thank you so much.